Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and welcome to the 7th episode of Weekly Takes by Jagjit from New York. As always, we begin by talking about news of the world, happenings in USA, a little known fact about New York City, news of India, and the role of the opposition, wherein we will talk specifically about the Congress Party. Let's begin. International news. The headline was COVID-19 again, as it is spiking back the world over. Countries which were opening up are shutting down. Now we have started talking in millions. Brazil has crossed 2 million mark, India 1 million, US over 3.5 million. Talk is hot about the vaccine entering the third phase, and Russian hackers are being accused of trying to steal vaccine research. Amidst all this, a lot of buzz is being heard about Hong Kong, where elections were held over last weekend. Initial results from the primary election showed strong preference for younger, more radical, anti-Beijing activists. As expected, Chinese officials criticized the vote, saying the ballot may be in breach of new national security laws. And yes, over 610,000 people voted. In the United States, the main news has still been COVID-19, and 7 states are headed for a full shutdown: Arizona, Florida, Louisiana, South Carolina, Texas, Georgia, and Alabama. COVID-19 infections are rising in 41 US states, with some southern hotspots taking crisis measures on Thursday, including calling in military medics and parking mobile morgue trucks outside hospitals. In comparison, New York State has been improving, and pray to God it remains the same. I live in New York. Black Lives Matter is something which is close to our hearts and is a long struggle which we must win. I repeat, we must win. It may take time, but in the end, we all have to emerge victorious. In another news, the government is planning to bring back all American troops from Afghanistan. NASDAQ is in good spirits. Unemployment rates are decreasing. If forecasters are to be believed, the United States unemployment rate is projected to trend around 7% in 2021 and 6% in 2022. But under whose leadership, time will tell. In a sad news, civil rights activists and longtime representative John Lewis of Georgia is no more with us. The 80-year-old was a key figure in the civil rights movement and had marched with Dr. King. And now, moving over to one interesting fact about New York City. Do you know that once New York City was the capital of the United States? Yes, it was the first capital of the United States in 1789 and is also called the Big Apple. But do you know why? The nickname, the Big Apple, originated in the 1920s in reference to the prizes or Big Apples rewarded at the many racing courses in and around New York City. However, it wasn't officially adopted as the city's nickname until 1971 as a result of a successful ad campaign intended to attract tourists. अब चलें भारत की ओर। इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में ये सूचना है कि दोनों देशों में कई स्तर पर वार्ता हुई है, जिसके तहत स्टेटस को की ओर दोनों अग्रसर हैं। कोरोना का प्रकोप जारी है, कई राज्यों में लॉकडाउन फिर से हो रहा है। हाँ, अमिताभ बच्चन परिवार समेत कोरोना के चपेट में आ गए हैं। In a reprieve to about 2 lakh Indian students enrolled in various US institutions this year, the US government has rescinded its plan to strip visas from international students in online classes. The Trump administration said it would no longer require foreign students to attend in-person classes during the coronavirus pandemic in order to remain in the country. On a lighter note, a Karnataka Congress leader proclaimed, "Drink rum, eat fried eggs and coronavirus will vanish." जस नेता तस चेला। अब चलते हैं बिहार की ओर। हमने चर्चा की थी शेर शाह सूरी तक। शेर शाह सूरी का शासनकाल अत्यंत उत्तम कहा जा सकता है, पर मुगलों ने अफगान शासन को कमजोर करके बिहार पर राज्य करना प्रारंभ किया। 1580 में पूर्ण रूप से बिहार अकबर के कब्जे में चला गया था। मुगल काल में औरंगजेब के अंत के बाद
बिहार शनैः शनैः आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किए बिना बिहार के इतिहास का मकसद पूरा नहीं होगा। वह है बिहार और सिख धर्म का संबंध। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। उन्होंने मुगलों के साथ 14 युद्ध किए थे, धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया। तख्त श्री हरिमंदिर साहब आज भी पटना साहब में सिखों के श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। इधर बिहार की भूमि अंग्रेजों के आने की आहट सुन रही थी। 1756 में बिहार और बंगाल में अलवर्दी और सिराजुद्दौला के समय में अनेक विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में हो रहा था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल में मीर कासिम की, और यहीं से अंग्रेजी शासनकाल का प्रारंभ बिहार में माना जा सकता है। जैसे भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा पुर्तगाली आया था, उसी तरह बिहार में भी पहले पुर्तगाली ही आए थे। उस समय भागलपुर, पाटलिपुत्र, तिरहुत आदि रेशम, मलमल, लोहे के उत्पादन और बारूद बनाने के लिए जो शोरा नामक धातु होता है, उसके लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रसिद्ध किताब द हिंदू फिलॉसफी में इसका उल्लेख भी किया है। विदेशियों के भी बिहार आने का उद्देश्य लोहा और शोरे को हासिल करना था, जिससे अधिक से अधिक हथियारों और बारूद का निर्माण हो सके। बिहार की नोनिया जाति इसे बनाने में सिद्धहस्त थी। हाजीपुर, तिरहुत, नील सूती कपड़े के उत्पादन के लिए और पूर्णिया, पटना शोरे उत्पादन के लिए जाना जाता था। 1651 में गुलजार बाग में शोरे की फैक्ट्री भी अंग्रेजों ने बनाई थी, FDI ऑफ टुडे। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ अंग्रेजों का दमन चक्र। नोनिया कारीगर अपनी ही जमीन पर अपने ही हुनर को शोषित होते नहीं देख सके और अंग्रेजों के विरुद्ध पहले विद्रोह की बिगुल बजाई, जिसे नोनिया विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख विद्रोह हुआ जनजातियों का। जनजातियों में बिहार का संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बिहार का रेजिडेंट था, उसने नई नई शोषणकारी नीतियों को लागू कर जनजातियों को छोटा नागपुर के इलाके से खदेड़कर भागलपुर के पास एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में जाकर बसने को बाध्य किया और साथ ही समग्र इलाके में मिशनरी द्वारा ईसाईयत स्वीकार करने का कदम चलाने लगा। यह नया आदेश जनजातियों को स्वीकार नहीं हुआ और न ही वो अपनी भूमि छोड़ने को तैयार हुए। फल था सशस्त्र विद्रोह। लंबे समय तक यह लड़ाई चली और जनजाति झुकी नहीं। कुछ शर्तों का पालन करने को तो वह बाध्य हुए, पर अपनी भूमि नहीं छोड़ी। यह 1857 से ठीक पहले की क्रांति थी जो बिहार में हुई। दूसरा विद्रोह मुंडा विद्रोह था, जो एशिया में प्रसिद्ध हुआ। वह बिरसा मुंडा द्वारा आरंभ किया गया था। यह पहले धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध किया गया था, पर बाद में यह एक जनजाति से निकलकर पूरे संथाल परगना में और छोटा नागपुर में फैल गया। करीब 60,000 जनजातियों की इसमें सहभागिता थी। बिरसा मुंडा को लोग भगवान भी समझते थे। इस युद्ध से कार्ल मार्क्स इतने प्रभावित हुए थे कि इसकी चर्चा भी उन्होंने अपने किताब में की है। यह भी लंबी अवधि तक चलने वाली जनजातियों की सीमित साधनों द्वारा चलने वाली लड़ाई थी, जिसमें बिरसा मुंडा को बंदी बनाया गया, जेल में उन्हें हैजा हो गया और बाद में उनकी मृत्यु हुई। बिहार विद्रोह का एक और अध्याय अगर सिपाही विद्रोह के संदर्भ में न देखा गया तो यह जानकारी अधूरी रहेगी। 1857 की 32nd इन्फेंट्री के विद्रोही जब मेरठ में अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर भागे, तब उन्होंने आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के यहाँ आश्रय लिया और उनसे विद्रोह का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। कुंवर सिंह के रगों में आजादी की लालसा थी, इतनी प्रबल कि सारे भारतवर्ष ने एक 80 साल के युद्ध का पराक्रम और बार बार नमन किया। वीर कुंवर सिंह ने सशस्त्र युद्ध किया और कर्नल डेनवर को मारा। आरा एक बार फिर आजाद हुआ था, भले ही थोड़ी अवधि के लिए। उसके बाद वीर कुंवर सिंह आजादी की लड़ाई में तात्या टोपे से कालपी में मिले और इसी सिलसिले में जब वह आरा लौट रहे थे, तब दुश्मन की गोली उनकी बाह में लगी। जब उसमें संक्रमण हो गया तो उन्होंने घायल बाह काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। 2 दिन बाद उसी संक्रमण से उनकी मृत्यु हुई। दानापुर छावनी में भी इसी विद्रोह के समर्थन में विद्रोह हुआ था। अब हम उत्तरकालीन विद्रोहों पर एक नजर डालें, जिसने सारे भारत को प्रभावित किया। इसमें किसान आंदोलन और नीलहा मजदूरों का विद्रोह सबसे प्रमुख है। उस समय नील व्यापार अंग्रेजों का मुख्य लाभकारी व्यवसाय था। नील खेतों से वह सारे यूरोप में नील का निर्यात करते थे। जिस समय यह कानून बनाया गया
कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य होगी। इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता था। बिहार के किसान इस व्यवस्था से पीड़ित थे क्योंकि नील की खेती खेतों को बंजर बनाती थी। अत्यंत शोषित अवस्था से विद्रोह करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने अनेकों कांग्रेसी नेताओं से इसकी रहनुमाई करने का अनुरोध किया, पर कोई तैयार नहीं हुआ। जब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया, तब वो तैयार हो गए। यहीं से बिहार साक्षी बनता है महात्मा गांधी के प्रथम रचनात्मक असहयोग आंदोलन का। वह मुजफ्फरपुर आए, वहां रुके और वहां के वरिष्ठ नेताओं के साथ चंपारण की ओर कूच किया। यह सत्याग्रह सफल हुआ, 3 कठिया प्रथा समाप्त हुई और गांधी महानायक के रूप में उभरे। लोगों ने यह रूप भी आंदोलन का देखा और उसके बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि से गुरुदेव रविंद्रनाथ ने सुशोभित किया। इस आंदोलन की सफलता को देखते हुए 1928 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में मधुबनी और दरभंगा में किसानों ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसमें बड़े किसानों के मांग को मान लिया गया और छोटे किसानों को दरकिनार कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप मुंगेर में पहली किसान सभा का गठन किया गया, जो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने की थी। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़े और यह भारत स्तर पर प्रसिद्ध होने लगी, जिसके फलस्वरूप 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसी का अनुकरण करते हुए मजदूरों के हित की रक्षा के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी का गठन हुआ, जिसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा गया और इसको शुरू करने वाले 7 लोग थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बसावन सिंह, मीनू मसानी और मेने नाना अवधेश्वर प्रसाद सिंह, जो अखिल भारतीय किसान सभा के इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे। यह पार्टी एक सशक्त पार्टी थी जिसने कांग्रेस पार्टी में वामपंथी विचारधारा का समावेश किया। जयप्रकाश नारायण को यूं ही लोकनायक नहीं कहा जाता था। जीवन भर उन्होंने दलित, पिछड़ों, आवाजविहीन के लिए संघर्ष किया। आजादी की लड़ाई में जब 1942 में उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर लिया गया था, तब वह जेल से फरार होकर नेपाल चले गए थे। वहां नेपाल के राजविराज के हनुमान नगर में उन्होंने आजाद दस्ते का संगठन किया, जिसमें छापामार तरीका से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की शिक्षा दी जाती थी। स्वतंत्रता के बाद भी वह इतने ही सक्रिय रहे। बिहार में किसान सभा संगठन के समकालीन भारत में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थी। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना तिलक द्वारा हुई, जिसका साधारण अर्थ था घरेलू शासन। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। होम रूल लीग की स्थापना बिहार में भी हुई, जिसकी स्थापना मजरूल हक ने की थी। होम रूल लीग के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई में और भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने लगी थी। 8 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत का पटना से संचालन किया। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की पटना में स्थापना की और अन्य गतिविधियों के साथ साथ मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की अंग्रेजों द्वारा घटना स्थल पर मृत्यु हुई और साथ ही आजादी का विरोध तीव्र से तीव्रतर होता गया। 9 अगस्त 1942 को समस्त भारतवर्ष में छात्रों ने विरोध प्रारंभ किया। 11 अगस्त को बिहार के छात्रों ने पटना सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराने का निश्चय किया। 7 छात्र ध्वज लेकर आगे बढ़े। पुलिस ने गोली चलानी शुरू की। एक छात्र गोली खाकर मरता गया और दूसरा वंदे मातरम का घोष करता हुआ ध्वज को आगे फहराता गया। आज भी उन शहीदों के स्मारक पटना सचिवालय में देखा जा सकता है। इस घटना के पहले एक और घटना उल्लेखनीय है। 1908 में मुजफ्फरपुर में जिला जज DS किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर मारने के प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा हुई। और ऐसे अनगिनत बलिदानों की अग्नि परीक्षा को पार करते हुए भारत अपनी आजादी की ओर गतिमान हो रहा था, जिसमें बिहार का सहयोग अविस्मरणीय है। जरूरत है कि आज की पीढ़ी इस योगदान को समझे, जाने और एक बार अपने जीवन में जरूर सोचे कि भारत उसके लिए क्या मायने रखता है। ज्ञात रहे नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का था और जानते हैं कि आज उसकी क्या हालत है। लेट अस टॉक अबाउट द कांग्रेस पार्टी व्हिच आई हैड सेड इन द लास्ट एपिसोड इज द फिefdom ऑफ द फैमिली। कहें तो 3 लोगों की जागीर, और जो कोई भी इनकी दादागिरी को चैलेंज करे उसके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है कि वह पार्टी छोड़ने को मजबूर हो जाता है। यही हुआ सिंधिया के साथ
और वही होने जा रहा है सचिन पायलट के साथ। कांग्रेसियों को सोचना होगा कि क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी, क्या इससे देश का भला होगा। कांग्रेसियों के दिमाग में एक बात भर दी गई है कि बिना गांधी के, असली हो या नकली, परिवार के पार्टी टिक नहीं सकती। यह मिथ्या है विच हैज बीन प्रोपेगेटेड टाइम एंड अगेन। याद करें, कुछ समय पहले ही नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जो पूरे 5 साल चली, एंड दैट टू विदाउट रिमोट कंट्रोल। और आज अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो उसी सरकार की देन है विच इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय टुडेज कांग्रेसीज। मनमोहन सिंह भी देश को उन्हीं की देन है। इंडिया वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन टुडे इफ इन हिज 10 years he had not taken orders from 10 जनपद। समस्या है कि बिगुल कौन बजाए। मुझे सचिन पायलट से उम्मीद है, कोई तो बुगिल बजाओ और कांग्रेस को गिरोह से मुक्त करो। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हम सोनिया जी के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, मैं जो भी कहूंगा उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है, as everything is available in public domain. Sonia Maino got married to Rajiv Gandhi on February 25, 1968. After her marriage, she continued to live in the house of the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. She obtained citizenship of India in 1983. So all this time, 68 to 83, she lived in the house of the Prime Minister being a foreign citizen. As per law, was it not a threat to national security? यह मैं आपके सोच पर छोड़ता हूं, आप खुद गौर करें। इधर राहुल गांधी का एक वीडियो देखने को मिला जिसमें ही ट्राइज टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज एन इंटेलेक्चुअल। According to him and his advisors who wrote the script, the present dispensation's doings have weakened the country and left it vulnerable. I fail to understand his logic. Good backdrop and lighting do not make you intelligent. He mentions that a country is protected by a confluence of factors. He forgot to mention one, the most important one, the morale of the nation, the strength of its people's voice in unison, which he himself has denounced and flouted every day and continues doing so. Are your acts of questioning the army strengthening India, Mr. Rahul? Think about it with an open mind. Close your eyes and think like an ordinary Indian citizen. You will get the same answer which the 130 crore Indians already know. Earlier I called you by your first name because your last name is a borrowed one from the Mahatma, of which you are no match. And it is an injustice to the Mahatma to call you by your last name. Get a haircut and leave the Congress party as you had decided in 2019. India will thank you. अगले एपिसोड में कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स में फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।